صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میں کسی اور سے محبت کرتا تھا اور اماں نے میری شادی زبردستی اپنی یتیم بھانجی سے کر دی۔ مجھے اس سے شدید نفرت تھی، جبکہ وہ کم عمر اور معصوم تھی۔ میں اسے شاپنگ کے بہانے دوسرے شہر لے گیا اور طلاق دے کر وہیں چھوڑایا۔ گھر آ کر بہت رویا اور بتایا کہ وہ کھائی سے گر گئی۔ کچھ وقت کے بعد پسند کی لڑکی سے شادی کر لی۔ 1 سال گزرا تو بیوی بچہ پیدا کرنے لگی، پر جب میں نے الٹرا ساؤنڈ مشین کی طرف دیکھا تو قیامت ٹوٹ پڑی کہ آ گئے آپ۔ میں جو ہی گھر میں داخل ہوا، صدف بھاگ کر میرے پاس چلی آئی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح میرے ہاتھ سے سامان پکڑا اور مجھے مسکرا کر سلام کیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دینا بھی پسند نہ کیا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ میرے پیچھے ہی کمرے میں چلی آئی تھی۔ اس نے فوراً میرے کپڑے نکال کر بستر پر رکھ دیے اور میرے جوتے اٹھا کر ریک پر رکھنے چلی گئی۔ اس کی خدمت گزاری سے مجھ پر کیا خاک اثر ہونا تھا، الٹا میرا دل جل کر کوئلہ ہو گیا۔ یہ سب مجھے موم کرنے کے طریقے تھے جو اس کی بالکل کام نہ آنے والے تھے۔ آپ کے لیے کھانا لگاؤں؟ میں جو ہی فریش ہو کر باہر نکلا، اس نے سعادت مندی سے پوچھا تو میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ فی الحال تم یہاں سے اپنی شکل غائب کر لو۔ میں نے سارا غصہ اس پر نکالا تو وہ حیران نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ کچھ پل کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو، کھانا کھانا ہوگا تو میں خود ہی کھا لوں گا۔ میں نے اپنی بات مکمل کی اور بستر پر ٹھہر سا گیا، جبکہ وہ کچھ دیر حیرت اور افسوس سے کھڑی مجھے دیکھتی رہی اور پھر چپ چاپ سے باہر نکل گئی۔ میں جانتا تھا کہ اب وہ کسی کونے میں چھپی آنسو بہا رہی ہوگی، پر میرے دل پر اس کے خلاف وہ مہر ثبت تھی کہ مجھے اس کے غمزدہ چہرے، بھیگے لہجے اور اس کی پلکوں پر ٹکے آنسوؤں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرا نام سعید ہے۔ میرے ابا ایک کاروباری آدمی تھے۔ شہر کے بیچوں بیچ ان کی بڑی سی کپڑے کی ایک دکان تھی۔ ابا نے 2-3 ملازم بھی رکھے ہوئے تھے۔ میں نے جو ہی FA کا امتحان پاس کیا، ابا نے میری ایک نہ سنی اور مجھے اپنی دکان پر اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ چونکہ یہ ابا کا کاروبار تھا، لہٰذا مجھے اس میں زیادہ دلچسپی نہ تھی۔ میں چاہتا تھا کہ اپنا علیحدہ کاروبار کروں یا نوکری کروں، مگر ابا میری نوکری کے سخت خلاف تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ نوکری کر کے کسی کی غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے کاروبار کی جانب توجہ دو۔ اگر تمہیں کپڑوں کا کاروبار پسند نہیں تو بے شک کوئی علیحدہ کاروبار کرنے کے بارے میں سوچو۔ میں نے پہلے ہی کاروبار کرنے کے بارے میں سوچ رکھا تھا، مگر فی الحال میرے پاس سرمایہ کی کمی تھی، اور جب تک مجھے تجربہ نہ ہو جاتا تب تک ابا مجھے سرمایہ دینے کو تیار نہ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے تھوڑا سا کام کر کے تجربہ حاصل کرو، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں ان کا سارا محنت سے کمایا اور جمع کیا ہوا پیسہ ایسے ہی کسی بھی کاروبار میں لگا کر ضائع کر دوں۔ میں خود بھی یہ نہیں چاہتا تھا، اسی لیے چاروں ناچار ابا کی دکان پر جانے لگا۔ جیسے ابا کی خواہش تھی کہ وہ مجھے کاروبار کے تمام رموز اوقاف سکھا دیں، ایسے ہی اماں کو میرے سر پر صحرا سجانے کا شوق تھا۔ ابھی مجھے ابا کی دکان پر جاتے 6 ماہ ہی ہوئے تھے کہ اماں نے میری شادی کی ضد باندھ دی تھی۔ میں نے بھی اپنی پسند کی لڑکی کا نام فوراً ہی اماں کے سامنے رکھ دیا تھا۔ نادیہ ہمارے محلے میں رہا کرتی تھی۔ میں دل میں اسے چاہتا تھا۔ اس نے میٹرک کے امتحانات میرے ساتھ ہی دیے تھے، جبکہ اب 2 سال سے وہ گھر میں فارغ بیٹھی تھی۔ وہ میرے کالج آنے اور جانے کے وقت دروازے میں کھڑی ہوتی۔ میں جان گیا تھا کہ وہ میرا انتظار کرتی ہے۔ مجھے بھی اس کی عادت ہوتی گئی تھی۔ اب اگر وہ کبھی دروازے پر موجود نہ ہوتی تو میں بے چین ہو جاتا۔ اس کی گوری چمکتی رنگت اور کشادہ پیشانی کے ساتھ مسکراہٹ اس کے چہرے پر بڑی بھلی لگتی۔ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے بڑی الفت بھرے انداز میں جواب دیا کہ میرا دل خوش ہو کر رہ گیا، اور یوں ہماری باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چند مہینوں بعد ہی عہد و پیما اس قدر ہوئے کہ ہماری پسندیدگی محبت کے بعد عشق میں ڈھل گئی۔ میں اسے روز روز دیکھ کر جیتا اور وہ میرے انتظار میں بے چین رہتی۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں صرف اسی سے شادی کروں گا۔ اس کی اماں کا ہمارے گھر آنا جانا تھا اور اماں سے دوستی بھی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اماں اس کی اور میری شادی کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں گی اور میرا اس کے ساتھ رشتہ آسانی سے طے ہو جائے گا۔ اسی لیے میں نے بڑے دھڑلے سے اماں کے سامنے اس کا نام لے لیا، مگر اماں نے میرے اور نادیہ کے رشتے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کی ماں بڑی چالاک عورت ہے اور نادیہ کو میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ خود بھی بڑی تیز ترار ہے۔ میں اسے اپنے گھر کی بہو نہیں بناؤں گی۔ میں اپنے اکلوتے بیٹے کو اتنی آسانی سے اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دے سکتی۔ میں اماں کی بات سن کر حیران تھا۔ بھلا نادیہ چالاک اور ہوشیار لڑکی تھی تو میں کون سا بیوقوف تھا کہ دوسرے ہی دن اس کے اشاروں پر ناچنا شروع کر دوں گا اور اپنی ماں کو گھر سے نکال دوں گا۔ میں نے اماں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ میں نادیہ کو لائن پر رکھوں گا اور آپ کو اس گھر میں وہی مقام ملے گا جو آپ کا مقام ہے، مگر وہ اماں ہی کیا جو میری بات سمجھ جاتی۔ اماں نے تو ٹھان لی تھی کہ وہ اپنی بھانجی سے میری شادی کریں گی۔ اماں کی بہن کے شوہر کی وفات کو عرصہ گزر چکا تھا۔ خالہ نے بڑی محنت کر کے اپنے بچوں کو پالا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اماں بھی ان کو کافی سہارا لگایا کرتی تھی۔ چونکہ ابا کی اچھی آمدن تھی لہٰذا اماں ان کو ماہانہ خرچ دیا کرتی تھی۔ حالانکہ بچے پڑھ رہے تھے۔ صدف سب سے بڑی تھی۔ اس نے شاید ابھی میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا۔ وہ مجھ سے 3 سال چھوٹی تھی۔ میں اس غریب یتیم سے شادی کرنے کا خواہاں نہ تھا۔ مجھے تو نادیہ کی طرح شوخ و چنچل چاہیے تھی، نہ ہی اسے باتیں کرنے کا فن آتا تھا۔
बल्कि फन तो क्या, उसे तो बातें करना ही ना आती थी। वो चुपचाप सर झुकाए अपने काम में मगन रहती और बस दुआ सलाम से आगे कोई बात न करती। वो संजीदा मिजाज की हामिल एक लड़की थी जो अपनी पढ़ाई में गर्क रहती। उसको इर्द गिर्द की दुनिया की कोई परवाह न थी। शायद उसके घर के हालात ने उसे वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। बहरहाल जो भी था वो मुझे बिल्कुल पसंद न थी और मैं उससे शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैं अपनी मनपसंद लड़की से ही शादी करना चाहता था। मैंने ठान ली थी कि भले इसके लिए मुझे अम्मा तो क्या पूरी दुनिया से भी टकराना पड़ जाता तो मैं टकरा जाता। तुम्हारी खाला ने जिंदगी भर बहुत दुख उठाए हैं। तुम्हारा और सदफ का रिश्ता बचपन से ही तय है। जब उसके वालिद की वफात हुई थी मैंने तभी अपनी बहन को जबान दे दी थी कि मैं सदफ को अपनी बहू बनाकर अपने घर ले जाऊंगी। मैंने नादिया से शादी की सर तोड़ कोशिशें की तो बिलाखिर अम्मा ने मुझे असल बात बताई थी। आपके वादों के पीछे मैं अपनी जिंदगी कैसे बर्बाद कर लूं? मैं सदफ के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैंने अम्मा से दूबदू बहस की तो वो मुझे हैरत से देखने लगी। तेरी जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। मैं नादिया को किसी सूरत अपनी बहू नहीं बनाऊंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। चुपचाप सदफ से शादी के लिए तैयारी पकड़ो वरना अपना बैग भरो और इस घर से चलते हो। अम्मा ने तो मुझे साफ घर से चले जाने का ही कह दिया था। मैं रूहान सा होकर उनकी शक्ल देखने लगा कि भला कोई अपने इकलौते बेटे के साथ ऐसा सलूक करता है। अम्मा शुरू से ही सख्त तबीयत की मालिक थी। उन्होंने मेरे इकलौते होने का भी लिहाज न रखा और मेरी तरबियत सख्ती के साथ की थी। उन्होंने सारी जिंदगी मुझ पर अपने फैसले मुसल्लत किए थे। अब जबकि ये मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला था, मेरी शादी होने वाली थी, ऐसे में अम्मा ने मुझे घर से निकालने की धमकी दे दी थी। भला मैं घर से निकलकर कहाँ जाता? मुझे दरबदर ठोकरें खाने की ना तो आदत थी और ना ही मैं ये सब बर्दाश्त कर सकता था। मैंने हमेशा ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारी थी। अम्मा ने मुझे शेर की निगाह से देखा मगर खिलाया हमेशा सोने करने वाला था और मुझे इस ऐशो इशरत की आदत थी। मैं जानता था कि अम्मा से बाइद ना था कि वो मुझे वाकई घर से चलता करते। मेरे मामले में अब्बा बिल्कुल भी ना बोला करते। उन्होंने तो मेरी तरबियत का जिम्मा अम्मा पर डाल रखा था, लिहाजा घर में मेरे मुतालिक तो अम्मा की मर्जी ही चला करती। अम्मा ने वही किया जो अम्मा ने ठान लिया था। वो नादिया के लिए मेरा रिश्ता ले जाने को किसी तार तैयार ना हो। अम्मा तो ना मानी मगर मैं बिलाखिर मान गया क्योंकि मेरे आजमाए गए तमाम हरबे नाकाम हो गए और बिलाखिर जीत अम्मा की हुई। अम्मा बाकायदा तौर पर मेरा रिश्ता लेकर खाला के घर पहुंच गई। खाला तो पहले ही तैयार थी, वो क्यों इनकार करती? लिहाजा उन्होंने झटपट हाँ कर दी और यूं मेरी मंगनी सदफ से हो गई। मैंने कभी सोचा भी ना था कि वो यूं मेरी जिंदगी में जबरदस्ती चली आएगी। मैंने बिल्कुल चुप साध ली थी। जब मेरा एहतजाज काम ना आया तो मेरी खामोशी भला क्या खाक काम आती? अम्मा भी चुपचाप शादी की तैयारियों में लग गई। वो अपनी नजर मुझ पर जमाए मुझे देखती और नसीहत करना ना भूलती। अब अपना मिजाज दुरुस्त कर लो। मैं नहीं चाहती कि सदफ के आने के बाद उसे किसी किस्म की कोई बात महसूस हो। अम्मा को सदफ की मुझसे भी ज्यादा परवाह थी। मेरे दिल पर छुरियां चल रही थी। उधर नादिया ने मेरी मंगनी का सुनकर अलग हंगामा कर रखा था। उसकी नाराजगी तो अपनी जगह थी ही मगर साथ साथ वो मेरा दिमाग भी खाई जा रही थी। वो मेरे साथ घर से भागने को भी तैयार थी। मैं उसकी जरूरत पर हैरान होने के साथ साथ शर्मसार भी था कि मैं लड़का हूं, उसके लिए डटकर ना लड़ सका, जबकि वो लड़की होकर मेरे लिए अपना घर बार सब कुछ छोड़ने को तैयार थी। मैंने भी तय कर लिया था कि कुछ भी हो मैं नादिया से शादी करके ही रहूंगा। लिहाजा मैं मंसूबाबंदी करने लगा कि किसी तरह अब ये मंगनी टूट जाए और मेरी शादी सदफ से होने के बजाय नादिया से हो जाए। मगर शायद मैं ख्वाब ज्यादा देखता था और हकीकत में अमल कम ही किया करता था। लिहाजा मेरा कुछ ना हो सका और सदफ दुल्हन बनकर मेरी जिंदगी में चली आई। मेरी शादी के मौके पर अम्मा और अब्बा दोनों ही खुश थे। अम्मा की तो बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी हो गई थी, जबकि अब्बा ने अपने इकलौते बेटे के सर पर सहरा सजाया था। लिहाजा उनकी खुशी भी काबिल दीद थी। मुझे अम्मा अब्बा के चेहरों से ही अंदाजा हो गया था कि वो किस कदर खुश थे। मैं भी उनकी खुशी पर मुतमईन था। खानदान के लोग अम्मा अब्बा की तारीफ करते न थकते कि उन्होंने अपने बेटे की तरबियत कितनी अच्छी की थी, कि उसने अपने माँ बाप की पसंद से शादी की, वरना आजकल के लड़के तो अपनी पसंद की लड़की को ज्यादा तरजीह दिया करते हैं। अम्मा अब्बा अपने बेटे की फरमाबरदारी पर नाज़ा थे। लड़की पसंद होने के बावजूद मैंने अम्मा अब्बा के फैसले की लाज रखी थी। सदफ मेरी जिंदगी में तो चली आई थी मगर मेरे दिल में अपनी जगह न बना सकी। मेरे दिल में अभी भी नादिया बसती थी। सदफ की तमाम खिदमत गुजारी मेरे दिल के खानों पर दस्तक न दे सकी। शायद मैंने अपने दिल के दरवाजे उस पर बंद कर रखे थे। मुझे उस पर बेइंतहा गुस्सा था और उसकी खिदमत बनावटी लगती। जाहिर है अम्मा ने शुरू से ही उसके घराने का ख्याल रखा था, उसका खर्चा उठाया था, जबकि अपने बेटे से भी उसी यतीम को ब्याह लाई थी। ऐसी सूरत में वो अम्मा की एहसानमंद थी, इसीलिए वो अम्मा अब्बा की खूब खिदमत किया करती। मेरे दुकान से आने के बाद मेरे आगे पीछे घूमा करती, मगर मुझे उसके जज्बात की ना तो परवाह थी और ना उसकी मोहब्बत की कोई कदर थी। मैंने तो ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए कुछ अरसे में ही उसको अम्मा की नजरों से गिराना है, मगर सदफ ने मुझे ऐसा कोई भी मौका ना दिया। वो अम्मा की इतनी फरमाबरदार थी जितना तो उनका अपना सगा बेटा भी न था। उसने अब्बा के दिल में भी जल्दी घर बना लिया, जबकि मैं हाथ मसलता हुआ रह गया। अब करूं तो क्या करूं?
मुझे कुछ भी समझ ना आता। मैंने बहुत सोच समझ करके मंसूबा बना लिया था और उस पर अमल करने चला था। मैंने सदफ के साथ अपना रवैया बेहतर बनाया तो वो भी दंग रह गई। उसको यही लगा था कि शायद उसने अपनी मेहनतों और खिदमतों का सिला पा लिया था। मैं मुस्कुराकर उससे बात करने लगा, उसकी खबरगिरी करने लगा। मैं उसको एक दो बार खाला से मिलवाने भी ले गया और उसकी मर्जी के एक दो जोड़े खरीद कर ला दिए तो वो इसी पर ही खुश हो गई थी। उसकी खिदमत गुजारी में मजीद तेजी आ गई थी। अब तो सारा दिन घर के कामों में जुटी रहती और अम्मा के पांव भी दबाने बैठ जाती, जबकि अम्मा उसे मना करती रह जाती। रात को वो मेरे भी कदमों में बैठकर मेरे पांव दबाने लगती तो मेरा दिल चाहता कि उसका मुंह नोचूं, मगर मुझे खुद पर काबू रखना था। मैं प्यार से उसके हाथ हटा देता और उसे समझाता कि वो आराम करे, दिन भर की थकी हुई है, वो तो निहारी हो जाती। मैंने अपना रवैया इसलिए बदला था ताकि मुस्तकबिल में जो मैं उसके साथ करने वाला था उसके पेश नजर अम्मा को उस पर किसी तौर भी शक ना होने पाए। एक दिन मौसम बहुत सुहाना था तो मैंने उसे कहा कि मैं उसे बड़े शहर शॉपिंग के लिए ले चलूंगा तो वो हैरान रह गई। उसने साफ मना कर दिया कि उसे ज्यादा चीजों का शौक नहीं है और उसके पास पहले ही इतने कपड़े और चीजें हैं, वो मजीद खरीद कर क्या करेगी। जबकि मैं उसकी शक्ल देखता रह गया। बीवियां तो अपने शौहरों से लड़ झगड़ कर शॉपिंग करती हैं और एक ये कैसी इंसान थी जिसको मैं खुद शॉपिंग करवाने के लिए बड़े शहर ले जाना चाहता था और वो इनकारी थी। मैंने यही बात अम्मा अब्बा के सामने रखी तो अम्मा भी मुस्कुरा दी। मैंने अम्मा को साफ बता दिया कि सदफ शॉपिंग पर जाने से इनकारी है। अब अम्मा का काम था उसे मनाना और मेरे साथ भेजना। अम्मा ऐसा क्यों ना करती। अम्मा ने खुशी खुशी उसे तैयारी करने के लिए कहा, जब तुम्हारा शौहर तुम्हें लेकर जा रहा है तो जाओ उसके साथ, यही घूमने फिरने के दिन है। अम्मा के कहने पर वो भी राजी हो गई और मेरे साथ दूसरे शहर जाने की तैयारी करने लगी। सदफ की खुशी का तो कोई ठिकाना न था। मुस्कुराहट तो उसके चेहरे से चिपक गई थी। मैंने आंखों में कहर भरकर उसके चेहरे पर फैली मुस्कुराहट को देखा था। ये मुस्कुराहट मैं जल्द ही छीनने वाला था। मैं उसे एक पार्क में ले गया और वहां एक सुनसान कोने में ले जाकर बिठा दिया था और वहां से उठकर वापस चल दिया। उसने मुझे आवाज देकर पूछा, आप कहां जा रहे हैं? मैं अपने घर और अपने शहर जा रहा हूं, तुम इसी शहर में कहीं गुम हो जाना, वापस अपनी शक्ल मुझे दोबारा कभी मत दिखाना। वो हैरत भरी नजरों से मेरी जानिब देखने लगी। शायद उसे लगा होगा कि मैं उसके साथ कोई मजाक कर रहा हूं, मगर मैं मजाक नहीं कर रहा था। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैंने उसके इर्द गिर्द धमाका किया तो वो साकत रह गई। उसके चेहरे पर एक साया सा मौजूद था। शायद उसे मेरी बात सुनाई न दी थी, लिहाजा मैंने दूसरी बार बुलंद आवाज में उसे तलाक दी तो उसकी आंखें पानियों से भर गईं। ये आप क्या कह रहे हैं? उसने कांपती हुई आवाज में कहा। वो कितनी मासूम थी। मुझे उसकी बनावट पर मजीद गुस्सा आ रहा था। तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूं? मैंने उसको तीसरी बार भी तलाक दे दी। मैं चाहता हूं कि तुम जिंदगी में दोबारा मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाओ। मैं उसे तलाक देकर तेज कदमों से वहां से वापस चलने लगा, जबकि वो कितनी ही देर मेरे पीछे भागती रही थी। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर तमाशा लगे, इसीलिए चुपचाप खड़ी रहो। मैंने गुस्से से भरी चिंगारती हुई आवाज में कहा तो वो सहम कर वहीं रुक गई और मुझे दूर तक जाता देखती रही। मैंने भी आखिरी कोने पर मुड़ने से पहले पलटकर उसे देखा था। वो साकत खड़ी मेरी जाने भी देख रही थी। मैं अपने शहर की बस में बैठकर वापस चला आया था। मैं रोता हुआ अकेले घर में दाखिल हुआ तो अम्मा मुझे देखकर परेशान हो गई। क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है? और सदफ कहाँ है? अम्मा ने अपने दिल पर हाथ रखकर पूछा। यकीनन उनका दिल घबरा रहा होगा। अम्मा, सदफ खाई में गिर गई है। मैं धाड़े मार मार कर रोने लगा और अम्मा के कदमों में बैठ गया। ये क्या कह रहा है? अम्मा सन्नाटे के आलम में खड़ी थी। ऐसा कैसे मुमकिन है? वो खाई में कैसे गिर सकती है? तुम लोग तो खरीदारी करने गए थे। अम्मा ने एक सांस में कितने ही सवाल पूछ डाले। अम्मा, खरीदारी करने के बाद ही मैं उसे सैर करवाने ले गया था। उसने खुद ही कहा था कि उसे सैर करनी है। मुझे नहीं मालूम कैसे उसका पांव फिसला और वो खाई में गिर गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा मगर वो मुझे कहीं न मिली तो मैं वापस चला आया। अम्मा ने बेयकीन नजरों से मेरी जानिब देखा। तू झूठ बोल रहा है ना? तू मजाक कर रहा है ना मेरे साथ? अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे आंसू ही मेरे गवाह बन सकते थे, लिहाजा मैं मजीद आंसू बहाने लगा। मैंने खाला को रास्ते में ही फोन कर दिया था। खाला भी रोती पीटती कुछ ही देर में आ पहुंची थी। मैंने उनको भी सारा वाकया सुनाया। अम्मा और खाला को यकीन ही ना आता था। अम्मा मुझे दोबारा उसी शहर में ले गई और वहां पर उन्होंने सदफ को बहुत तलाश किया, मगर वो कहीं न मिली। मैं चाहता भी नहीं था कि वो मिले। अगर वो मिल जाती तो मेरा भांडा फूट जाता। मैं खुद अब्बा को दूसरी जगह ले गया था और अब्बा के साथ उसे ढूंढने का ड्रामा करता रहा। कई दिन की तलाश के बाद भी वो न मिली तो मैंने सुकून का सांस लिया। सदफ का गम भला कितने अरसे मनाना था। अम्मा और खाला तो उसको नहीं भूल सकती थी, मगर मैं भूलने की कोशिश कर रहा था। मेरे आंसू थे कि रुकने का नाम ही ना लेते थे। मैंने अपना हाल बेहाल कर लिया था। ये सब कुछ अम्मा को दिखाने के लिए था। मैं चाहता था कि अम्मा खुद मेरी दूसरी शादी नादिया के साथ करवा दे और अपने बेटे की जिंदगी तबाह होने से बचा दे। मैं अब्बा के साथ दुकान पर ना जाता, बल्कि सारा दिन घर में पड़ा रहता। ना मुझे खाने का कोई होश था और ना ही पीने का। अलबत्ता मैं घर से बाहर जाकर कुछ न कुछ खा लिया करता था। अम्मा ने मेरा हाल देखा तो उन्होंने बेहतर यही समझा कि मेरी शादी करवा दी जाए।
उन्होंने मुझसे शादी का जिक्र किया तो मैंने साफ इनकार कर दिया, मगर मैं चाहता था कि अम्मा इसरार करे और फिर मेरा रिश्ता नादिया के घर ले जाए। कुछ दिनों में ये नौबत भी आ गई थी। अम्मा ने मुझे जबरदस्ती शादी के लिए मनाया और नादिया के घर रिश्ता लेकर जा पहुंची। नादिया और उसकी माँ तो पहले से ही तैयार थी। उसकी माँ ने झटपट हाँ कर दी और अगले ही जुमे सादगी से निकाह करके अम्मा नादिया को मेरी जिंदगी में ले आई। मैंने अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कितने पापड़ बेले थे, लिहाजा मैं खुशियों की बुलंदी पर था। मेरा बस चलता तो मैं हवाओं में छलांगे मारता, मगर मैं ऐसा कुछ भी करने से कासिर था। मैं अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकता था, क्योंकि इस तरह अम्मा को मुझ पर शक हो जाता, और अगर अम्मा को जरा सा भी मालूम होता तो अम्मा मुझे और मेरी बीवी दोनों को ही कान से पकड़कर घर से बाहर निकाल करती, उस गुनाह के लिए जो मैं कर चुका था। अम्मा मुझे सारी जिंदगी माफ न करती, लिहाजा मैंने अपने जज्बात पर काबू रखा और नादिया के साथ अपनी जिंदगी का आगाज कर दिया। नादिया की शोख चंचल तबीयत में कोई फर्क न आया था। वो वैसे ही खुश मिजाज थी जैसे शादी से पहले हुआ करती। उसकी अदाएं बड़ी खातिराना थी। मैं बहुत खुश था, मगर न जाने क्यों अम्मा के साथ उसकी अच्छी न गुजर रही थी। कुछ ही अरसे में अम्मा की तरफ से दबे दबे शिकवे शिकायत शुरू होने लगे थे, मगर मुझे कहां परवाह थी। मैं तो उसके साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। वो मेरे हर मामले में मेरा साथ देती। हम अक्सर ही बाहर खाना खाने निकल जाते और रात गए वापस लौटते थे। नादिया के साथ 1 साल कैसे गुजरा मुझे पता ही न चला। उसने मुझे हामला होने की खुशखबरी सुनाई तो मैं हवाओं में उड़ने लगा। मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मेरी अपनी औलाद हो। मुझे बेटे का बहुत शौक था। मैं उसे फौरन ही डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने इस शक की तस्दीक कर दी। मैं नादिया का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगा था। मैं जानना चाहता था कि अल्लाह मुझे बेटा अता करेगा या बेटी। नादिया के डिलीवरी के दिन नजदीक आ गए थे। मैं उसे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले गया था। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करना शुरू किया था। मुझे बेटा होगा या बेटी, मैं ये जानने के लिए बेताब था, मगर जो ही मैंने अल्ट्रासाउंड मशीन की तरफ देखा मुझ पर कयामत टूट पड़ी। वो एक अजीबुल खलकत बच्ची थी जिसका सर उसके बाकी जिस्म से काफी छोटा था। शायद अभी तक उसकी पूरी नशोनुमा नहीं हो सकी थी, जबकि अब तो डिलीवरी में कुछ ही हफ्ते बाकी थे। डॉक्टर ने मेरे खदशे की तस्दीक कर दी थी। उसका कहना था कि 1 माह पहले तक तो बच्चे की सेहत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अब न जाने क्यों बच्ची की नशोनुमा रुक गई है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरा दिल कांप गया था। अगर मेरी बच्ची ऐसी पैदा हुई तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मैं अपनी आने वाली औलाद के बारे में सोचकर बेहद परेशान था। मैंने माजी में जो किया था मुझे उसका फौरी ही एहसास हो गया। मैं सदफ के साथ कितना गलत कर चुका था, और अल्लाह ने अगर मुझे बेटी अता की तो मैं उसकी हिफाजत क्यों कर पाऊंगा, जबकि मैं खुद किसी की बेटी के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी और ज्यादती कर चुका था। शायद वो अदराक का ही लम्हा था। मेरे तो जिस्म में जैसे लहू न रहा था। मेरा हालत बिल्कुल खुश्क हो गया था। मुझे अपने गुनाह का एहसास हो गया था। मैं अपने रब को कैसे मुंह दिखाऊंगा और अपने माँ बाप का सामना कैसे करूंगा। सदफ की तबाही और बर्बादी के पीछे मेरा हाथ था। कोई अपनी बीवी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है जैसा मैंने किया था। ना सिर्फ बीवी, बल्कि वो तो मेरी माँ की सगी यतीम भांजी थी। वो शायद इदराक का लम्हा था। मैं अपने गुनाह पर पछता रहा था, क्योंकि अल्लाह जल्द ही मुझे बेटी से नवाजने वाला था। सदफ भी तो किसी की बेटी थी। मैं अस्पताल से वापस लौटा तो मेरे दिल पर बड़ा बोझ था। हाथ से पहले मुझे एहसास न हुआ था कि मैंने सदफ के साथ इतना गलत किया था, मगर अब मुझे एहसास हो चुका था। मुझे किसी सूरत चैन नहीं आ रहा था। बेचैनी थी कि बढ़ती ही जा रही थी। मेरा दिल चाहता कि मैं अम्मा के सामने जाकर अपना जुर्म कबूल कर लूं, मगर मुझ में इतनी हिम्मत कहां थी। अम्मा का जख्म एक बार फिर से हरा हो जाएगा, और खाला वो तो रो रो कर ही मर जाएगी कि मैंने उसकी बेटी के साथ कितना बड़ा जुल्म किया। मैं एक बार फिर बड़े शहर में सदफ की तलाश के लिए गया। अब मैं उस इलाके की तरफ गया था जहां मैंने सदफ को छोड़ा था। अब्बा को तो मैं किसी और इलाके में ले गया था, और वहीं पर हम सदफ को तलाश करते रहे, मगर वो वहां होती तो मिलती। मैं उसी पार्क में गया जहां मैंने सदफ को आखिरी बार देखा था। वो मुझे वहां कहीं भी दिखाई न दी। अब तो इस बात को इतना अरसा गुजर गया था, न जाने उसके साथ क्या हुआ था। कहीं उसने सचमुच खाई में कूदकर अपनी जान तो न दे दी थी। वो वापस लौटकर घर भी न आई थी, क्योंकि मैंने उसे यही पैगाम दिया था कि मुझे दोबारा अपनी शक्ल न दिखाए। वैसे भी उसकी माँ ने तमाम जिंदगी दुख में गुजारी थी। शायद वो उसको मजीद दुख न देना चाहती थी कि वो तलाक का दाग लिए उसके सर पर आ पहुंची है। मैं इर्द गिर्द जगह जगह सदफ को तलाश करता रहा। एक दरबार पर जा पहुंचा। मैं रो रो कर अल्लाह से दुआ करने लगा। तभी अचानक वहां बैठी फकीरियों में से एक के चेहरे में मुझे सदफ की झलक नजर आई, तो मैं फौरन भागकर उसके पास गया। मैंने गौर से उसका चेहरा देखा। वो सदफ ही थी। उसने भी मुझे पहचान लिया था और अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करने लगी। सदफ, मैंने उसे आवाज दी तो उसने चौंक कर मेरी जानिब देखा। वो कितनी बदल गई थी। उसके चेहरे की मासूमियत कहीं खो गई थी, जबकि उसकी रंगत मजीद मुरझा गई थी। वो अपनी उम्र से कई गुना बड़ी लग रही थी। न जाने उसने यहां बैठकर क्या क्या सख्तियां झेली थी। मुझे माफ कर दो सदफ। मैं उसके कदमों में बैठ गया। मेरे साथ वापस चलो, घर चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूं। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। उसने मुझे पहचानने से साफ इनकार कर दिया। तुम्हारी माँ रो रो कर मर जाएगी, ऐसा मत करो। मैंने उसकी माँ का नाम लिया तो उसने अपना दिल थाम लिया।
मेरी माँ को तुमने क्या बताया? उसको मेरे बारे में क्या कहा? मैंने उसे बताया था कि तुम इस दुनिया में नहीं रही। अच्छा तो ठीक है, उसे इसी आसरे के साथ जी लेने दो, नहीं तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें देखकर वो जी उठेगी। मैं जबरदस्ती सदफ की मिन्नतें तरले करके उसे अपने साथ ले आया था और ले जाकर अम्मा के सामने खड़ा कर दिया। अम्मा एक लम्हे को तो उसे पहचान ही न सकी। जब दूसरे ही लम्हे उसे पहचाना तो अम्मा ने उसे अपने साथ लिपटा लिया था। अम्मा और सदफ दोनों मिलकर इस कदर रोई कि मेरी भी आंखें भर आईं। मुझे माफ कर दे अम्मा। मैं अम्मा के कदमों में बैठ गया तो अम्मा ने मुझे जोर से ठोकर मारकर दूर फेंक दिया। सदफ तो अभी भी कुछ न बोली। मैंने ही अम्मा और खाला को सारी हकीकत बता दी। मैं उनकी लानतों का हकदार ठहरा था। वो जितनी गालियां कोसते मुझे दे सकती थी दे रही थी। अम्मा को मुझसे ये उम्मीद न थी कि मैं इतना गलत कदम उठाऊंगा। अब्बा अलग मुझसे नाराज थे, सबकी नाराजगी बरहक थी। मैं ऐसी सुलूक के काबिल था, बल्कि मैं तो इससे भी कहीं ज्यादा सजा के काबिल था। अब्बा अम्मा को कह रहे थे कि ऐसी औलाद को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। उन्होंने साफ ऐलान कर दिया था कि उनका बेटा आज से उनके लिए मर गया। अम्मा ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं अपनी बीवी को लिए वहां से चला आया। अब मुझे बाकी जिंदगी ऐसी ही गुजारनी थी जैसी सदफ ने पिछले 1.5-2 सालों में गुजारी थी। मेरी यही सजा थी और मुझे अपनी सजा दिलो जान से कबूल थी। मुझे इस बात की खुशी थी कि मैंने इसी दुनिया में अपने गुनाह का अजाला करने की कोशिश की थी। खुदा मुझे माफ कर देगा तो मेरी बेटी के सामने ये सब कुछ नहीं आएगा। मैंने सदफ के साथ साथ खाला से भी हाथ जोड़कर माफी मांगी तो उन्होंने नफरत से मुंह फेर लिया था। मैं अपनी बीवी को लिए वहां से चला आया था और अलहदा मकान में रहने लगा। मैंने एक जगह नौकरी भी शुरू कर दी थी, मगर इस तंगी में मुझे अंदाजा हुआ कि मेरी दूसरी बीवी मेरे साथ जरा भी मुखलिस न थी। उसे तो वो सब आसाइशें चाहिए थी जो उसे अब्बा के घर में मुयस्सर थी, जबकि मैं वो सब देने से कासिर था। नादिया मुझसे रोज लड़ती और मुझे बुरा इंसान होने का ताना देती। अल्लाह ने जल्द ही हमें एक बेटी से नवाजा था, मगर मेरी बेटी ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मासूर थी। न वो बोल सकती थी और न सुन सकती थी। मेरी बेटी 2 साल की हो गई थी, मगर चलने फिरने से भी कासिर थी। शायद मेरे गुनाह का यही सिला था जो मेरी बेटी के माजूर होने की सूरत में मिला था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल